सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो था डांसर बनना सिर्फ, पर कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से मैं इस लाइन में आई हूँ, नर्सिंग लाइन में, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। पर सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो अभी भी डांसिंग में ही है, तो मैं ढंग से फोकस नहीं कर पाती हूँ। Good morning, sir. This side Palak Sharma, and I'm a student of GNM second year. So today I feel really very honored sir, that I speak in front of you. So my question. जैसे अभी घर में आपने बोला वो चल रही है यूक्रेन दशहरा का वो चल रहा है वो गल्फ में ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ प्लानिंग हम प्लानिंग कर लेते हैं, पर जो कंसिस्टेंसी है वो हम 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता इससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो पाती है। काफ़ी देर वेट करा आप लोगों ने। Here's, I would like to thank the team of the Care College of Nursing, our MD sir, respected MD sir, respected director ma'am, and Press Club of Haridwar for making this event possible. There were a lot of things were happening, and I was busy in a lot of events in office and also with respect to the Kawad Yatra that is happening right now in Haridwar. As you must be aware, कई लोग हरिद्वार के ही हैं आप लोग ज़्यादातर लोग, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ा भीड़ बढ़ने वाला है हरिद्वार में, तो उसको लेके हम लोग बिजी थे। एंड इट्स सच अ, आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द एडिटिंग टीम ऑफ केयर कॉलेज। दे डिड नॉट आस्क मी फॉर एनी वीडियोज, दे हैव क्यूरेटेड दिस ऑल फ्रॉम माई फेसबुक which has been very inactive for a while. That is why most of the videos they were able to capture were from when I was posted as CD Almoda. So it is always an honor and always a privilege to be among the youth, to be among the students. I also am able to recall my time in the college and my interactions that used to happen with the dignitaries there. That is why I would hope that I don't make this more mundane. And what I would suggest is you ask me questions if you have any with regards to your career, with regards to your professional life, your personal life, extracurriculars, whatever you want to ask, maybe that would be more helpful for you. So I guess that would be more helpful. You can give the mic to the students and they can raise their hands. कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे एक बार जब बताओगे आप अपना नाम बता देना and which year you are in nursing, and then you can ask the question. Good morning, sir. This side Palak Sharma, and I'm a student of GNM second year. So today I feel really very honored, sir, that I speak in front of you. So my question from you, sir, that everyone says that education is the key to success, but nobody says that struggle plus education is the key to success. So my question from you is, sir, during the struggle phase when you were also doing the struggle, so everybody knows that at one point we always feel like bas ho gaya, now we don't want to do anything. So is this happening with you also, sir? If yes, then what keeps you motivate, and what for the things that you will do struggle for that particular thing? So can you please share that things for us, sir? Very relevant question. Thank you, Palak. Please sit down. So, initially, I was very much involved in sports, so I was not that interested in studies altogether. But I used to study because my parents used to make me study. That was the case. So, 12th, college happened. College, when I realized that people are going haywire, they are getting into good companies, I need to study now. Then I studied for CAT. I cleared IIM Ahmedabad. I went there. I went to the university abroad also. When I went to IIM Ahmedabad, although Punjab Engineering College is one of the premier institutes, it is ranked very highly among the IITs also. But there I came to realize that people come from various backgrounds, and the method that I was using for studying is not right. There was a lot of cramming happening, lot of rote learning happening, where वो कहते हैं आप लोग बोलते हुए रट्टा मार लिया टाइप सा वो चीज़ हो रही थी। तो वो पढ़ने का तरीका एक तो चेंज करा था कि पढ़ाई कैसे करनी है। I thought that I had cracked the code. So I joined Asian Paints. I was there for a while. I started preparing for civil services. In the first attempt, they were saying that you have to do writing practice and all. I never gave a damn about it. I thought that I'm
very intelligent. I have cleared such an MBA institute. People are coming from graduation. How will they be able to write better answers than me? Failed miserably in the first attempt. In the second attempt, same story. So there was the first reality check for me, and it happened not like for 3 months or 4 months. It happened for consecutively 2 years. At that time, what motivated for me was get a clarity about what needs to be done. So the struggle will happen with whichever field you are there, but you need to have a clarity. Suppose you are studying any subject and you need to have clarity on that particular topic that you are studying rather than rote learning and all. First thing is the clarity and your understanding of that particular issue. Second thing, when you are appearing for the exams, or for that matter, if you are in sports, if you are appearing for a 100-meter sprint, you should be able to understand what are the conditions are there. So what are the previous year question papers are there, what kind of people. You don't have to reinvent the wheel also, because sometimes you may not know what is the right path, but already people have cracked it. Already people, आप कोई इन्वेंशन तो करने जा नहीं रहे हो फिलहाल. अगर वो इन्वेंशन करोगे तो स्ट्रगल थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट करा. दैट इज व्हाई दे एज्ड अ लॉट एंड देन दे वर एबल टू अराइव, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इटरेशंस इन्वॉल्वड. बट लेकिन आप देखोगे सक्सेसफुल पीपल के फुटप्रिंट्स रहते ही हैं. आप उनको देखो कि उनको ट्रैक करो. तो आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू ऑल द टॉपर्स मार्कशीट, उनके कैसे वो लिखते थे आंसर्स, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ. फिर उसको हम लोग मॉक टेस्ट में आई यूज टू करेक्ट इट. तो दैट वेज आई एबल टू ओवरकम द स्ट्रगल. तो स्ट्रगल विल हैपन मेनी टाइम्स, यू विल फील डाउन. उसका मतलब ये नहीं होता कि यू शुड लीव द फील्ड. यू शुड नॉट नेवर लीव द फील्ड ऑफ बैटल. द ओनली थिंग इज समटाइम्स यू नीड टू strategize. You need to step back. You need to understand this strategy is not working, and I need to relook into it, how I'm going to achieve my goals. तो जो means होते हैं उनको आपको चेंज करना पड़ता है, and it's very easy. You just need to understand जिसने सक्सेसफुल पाया था उसने क्या ऐसा किया था जिससे वो सक्सेसफुल हुआ था. That would make your path easier. हो सकता है in the process you might be able to understand new tricks, whatever field you are in. तो वो चीज़ आप वैसे भी देख सकते हो. And to remain motivated, you also need to have clarity why you are doing. If you don't have clarity, suppose just to clear the exam, if I'm studying, then I may not be motivated all the times. But suppose if I say that, okay, I am studying for this particular exam because I feel happy when I help people, and this will provide me an opportunity to help the people, because at the scale at which I will be making the impact, it will be very large. So that kept on motivating me during my third. Then it was easy. I got into third attempt, fourth attempt, fifth attempt. I got selected in all the places, different ranks, different services. Finally got into the administrative services. But when my why became clearer, why I wanted to become a civil servant, the rest of the path, re-strategize karna, how to focus on my topics, be patient with the failures, they also became more clearer. First of all, a very good morning, sir. My name is Diyasha and I am the student of BSc Nursing 5th semester. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, टाइम मैनेजमेंट. किसी भी सक्सेस के पीछे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट. तो मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम प्लानिंग करते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ प्लानिंग हम प्लानिंग कर लेते हैं, पर जो कंसिस्टेंसी है वो हम 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ता, इससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो पाती है. तो ऐसा क्या करें कि जो हमारा प्लानिंग से लेके फर्स्ट डे और सक्सेस से लेके लास्ट डे हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे. आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपसे क्वेश्चन. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन था आपका. यार एक बढ़िया कहानी है. ऐसे मैं लिस्ट करके बोलता था कि 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 8-9 घंटे का तो शेड्यूल ऐसे बन जाता था. Sometimes what happened was कि once I was studying some economic survey of India, और वो बैठा पढ़ने में 12 बजे, अगले दिन शाम को 4 बजे उठा. मतलब वो 12 बजे तक भी, शाम को 4 बजे तक भी.
नो नीड टू क्लैप, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड ऑल। वो किताब ही खत्म कर दी, वो 3 दिन की मैंने एक हफ्ते की प्लानिंग कर रखी थी कि एक हफ्ते में खत्म होगी है, क्योंकि वो बहुत सारे फिगर्स रहते हैं, यू नीड टू रिकॉल। टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे क्रूशल पार्ट रहता है कि व्हाट आई फील, बिकॉज जब व्हेन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपको मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने होते हैं। पहली बात तो टाइम पर्याप्त होता है, हमेशा टाइम पर्याप्त है। कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क आपको नहीं दे रहे हैं जो और लोगों ने नहीं करा है, इसका मतलब देयर वाज सफिशिएंट टाइम विच वाज यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि टाइम पूरा है। सेकेंड थिंग इज कि यू नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स। सपोज आप पढ़ रहे हो, आप अगर पढ़ते समय व्हाट हैपेंस इज इट इज नॉट अबाउट द मैक्रो प्लान दैट इज द इशू, इट इज व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन सपोज फॉर वन पर्टिकुलर फर्स्ट आवर आपने अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लिखा है, एनाटॉमी के लिए रख दिया आपने, उसमें अगर जब पढ़ रहे हो आप अगर डिबेट हो रहे हो, आपको ध्यान आ रहा है अरे यार वो भी पढ़ना था, ऐसा होता है, फिर याद आता है यार वो भी पढ़ना था, फिर वो उठा के वो देख लेते हो आप लोग, तो पूरा वैसे क्रैश कर जाता है आपका शेड्यूल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन हैव अ पीस ऑफ पेन और पेपर, उसमें अगर आपको ध्यान आता है कि ये देखना है वो देखना है, आप वहां लिख लो, ठीक है ये लिख लिया, मेरे पास शाम को 5 बजे का टाइम है, वो मैंने लैक्स टाइम रखा हुआ है, उस समय मैं इन चीजों को देख लूंगा। तो आपने डिस्टर्बेंस तो आएगा, एंड इट इज अ प्रैक्टिस। मेडिटेशन में भी ये रहता है, पूरे टाइम आप फोकस नहीं कर पाते, यू हैव टू कम बैक टू दैट पर्टिकुलर थॉट। तो आप उसको पेपर पेन पे लिख लिया आपने, शाम को दोबारा देख लिया उसे, तो उस समय का जो आपका पीरियड था 1 आवर जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए था, एनाटॉमी के लिए था, तो उस 1 घंटे में आप वो टॉपिक अपना कवर कर पाओगे। हो सकता है 4-5 मिनट के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन क्योंकि आपने नोट कर लिया है कि मैंने शाम को वो टाइम दे रखा है वो चीज करने का, तो ये होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। और ह्यूमन ब्रेन इज वेरी सिंपल, एट अ टाइम एक ही काम कर सकता है। ये मल्टीटास्किंग वाली चीज जो होती है ये ठीक है, पढ़ाई में काम नहीं आती। एक टाइम पे तो एक ही टॉपिक पे ध्यान दोगे ना, उसकी क्लैरिटी लोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे। वंस यू हैव द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग यू डोंट हैव टू गो बैक टू द टॉपिक, वो दिमाग में फीड हो जाता है आपके, तो वही चीज आपको करनी होगी। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का ये है कि इम्पॉसिबल टास्क मत रखो। यू इम्पॉसिबल से मतलब है डोंट कीप इट टू स्ट्रिंजेंट, कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो इन दैट। इफ यू मेक इट टू स्ट्रिंजेंट देन द प्रॉब्लम अराइजेज इज कि आप फिर फटीग बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो भी एक इशू है, डीमोटिवेट हो जाता है आदमी जल्दी। दूसरा उसमें अपने लिए भी टाइम रखो, आप अपने लिए भी टाइम रखो कि इफ यू हैव डन दिस देन ओके ठीक है, आई 1 hour आई विल वॉच नेटफ्लिक्स or I will go to the gym, yeah I'll play some sports, whatever makes you happy, whatever things keeps you happy you can pick that topic। तो वो चीज आप वैसे मैनेज कर सकते हो। और टाइम अगर आप 2 हफ्ते बाद अगर आप फटीग आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने 2 हफ्ते कर लिया। अच्छे अच्छे जो टॉप लोग रहते हैं 2-3 दिन में ही थक जाते हैं, फिर वो अपना शेड्यूल बदलते हैं, तो उसमें वो नहीं करना। अगर सपोज आपके पहले हाफ में टाइम आपका क्रैश कर गया, सेकेंड हाफ को आप यूटिलाइज कर लो, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। जब ट्रैक से उतरे हो तो पता होना चाहिए कि हम उतर गए हैं, नाउ टू कम बैक। इट इज ऑलवेज अबाउट कमिंग बैक, उससे फिर कंसिस्टेंसी आती है। That's it. Good morning, sir. My name is Jigyasa Saini. I am a student of BSc Nursing 5th semester. मेरा क्वेश्चन ये है कि हर स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, आपकी भी रही होगी, तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को कैसे वर्क कर सकते हैं, दोनों को बैलेंस करके कैसे लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। थैंक यू मलेशा। तो बहुत जिज्ञासा सॉरी, तो उसमें ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। स्ट्रेंथ में तो ये रहता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता ही है, तो ऐसा नहीं होता कि वीकनेस पे काम करते करते स्ट्रेंथ को भूल जाओ। स्ट्रेंथ इसलिए बिकॉज यू वर गुड एट इट एंड यू वर एबल टू स्टडी ऑन दैट टॉपिक या फिर वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, चाहे आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, इवन आपका कोई एक्सपेरिमेंट हो। वीकनेस पे काम करने के लिए व्हाट यू नीड टू इज एज शी वाज सेइंग, आपको टाइम अलॉट करो और फिर उसको असेस कर लो आप कि ठीक है आई हैव डन इस 15 डेज के बाद मेरा प्रोग्रेस क्या रहा। यू विल इम्प्रूव ऑब्वियसली। वीकनेस इसलिए रहती है 2-3 चीजों की वजह से रहती है, या तो आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा उस चीज को लेकर इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ,
दूसरा ये रहा होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। इन बोथ द केसेस आपका एक्सपोजर कम रहा है उसके लिए, वो एक्सपोजर को आपको बढ़ाना है। वंस यू वर्क ऑन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसको रिव्यू करते जाओगे, वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये जिम जाते हो, जिम्नेजियम जाते हो आप, तो सपोज आप आपकी वीकनेस हो गई कि मेरी मसल बिल्ड नहीं हो रही है, ठीक है, मेरा बैक वीक है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बैक वीक है तो किस लिए है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। You will then make a schedule and then you will review it after 15-20 days. तो वो फिर वीकनेस नहीं रहेगा। बस वीकनेस पता होनी चाहिए वीकनेस क्या है। कई बार हमें पता ही नहीं रहता हमारी वीकनेस क्या है और हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू है। जब हमें पता है कि हम कहाँ ये चीज़ है, तो फिर इट इज़ ईजियर फॉर यू ऑल्सो टू सॉल्व दैट इशू। इनफैक्ट एक और चीज़ होती है, सपोज मैं एग्जामिनेशन पेपर की बात करता हूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ बस। 60% तो बहुत हो गया मैम, आज तक नहीं गई कट ऑफ इतनी। हाँ मतलब 50 के आसपास रहती है मैम, 60% पेपर बहुत आसान होता है तो चली जाती है 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, वरना 100 से लेके जो जनरल का रहता है आपका कट ऑफ, वो 100 से लेके 115 116 तक वेरी करता रहता है, और अगर बहुत टफ आएगा तो 90 तक चला जाएगा। तो 50% ऑफ द टाइम्स यू हैव टू बी राइट, बाकी टाइम यू कैन लीव दैट। तो होता क्या है, कई बार व्हाट पीपल डू इज दे गेट स्टक इनटू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसको ईगो इशू बना लेते हैं एंड देन दे वेस्ट टाइम, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो बाकी के क्वेश्चन है, उस पर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो कम टाइम रह जाता है। तो ये चीज वहां समझने की है कि नॉट एवरी बैटल इज फॉर यू टू फाइट, ठीक है। आपको पता है सक्सेस का रास्ता ये, मैं इतने में ही सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो जैसे आईआईटी की भी तैयारी करते हैं लोग, तो किसी की इनऑर्गेनिक वीक होती है, तो इनऑर्गेनिक पे उतना फोकस नहीं करता, फिजिक्स मैथ्स और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करता है, और बाकी वो अपना सक्सेस पा लेते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोड मैप कि भाई मेरे को सक्सेस के लिए क्या जरूरत है, ये करना है। लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड, जैसे नीट का भी आप एग्जाम देखोगे, कट ऑफ कितनी हाई गई है उसकी। आई थिंक व्हाट इज द स्कोर, 760 में से होता है, कितने में से 720, और तो 720 में से 720 ला रहे हैं लोग, तो फिर उधर तो आप ये नहीं कर सकते। तो उधर आपको फिर सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे अगर अच्छे कॉलेज में जाना है। बट हाँ ठीक है, कुछ अगर वीकनेस है तो फिर ये उसको पढ़ लिया और फिर प्रार्थना करो वो वाला क्वेश्चन ना है, और अगर आ गया तो बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन इट, तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल इट। तो फिर ऐसे है, इसमें अगर कुछ आपको और पूछना है और क्लैरिटी चाहिए तो मैं फिर उस हिसाब से बताऊं। गुड मॉर्निंग सर, मैं सोनिया स्टीफन फ्रॉम जीएनएम सेकेंड ईयर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे हम पढ़ते हैं तो 5 या 10 मिनट के बाद हमें नींद आने लगती है, मन नहीं करता पढ़ने का। सर तो आपके साथ भी ऐसा होता था, और आपसे भी एक्सीडेंट बताया था कि आप 12 बजे बैठे और अगले दिन 4 बजे उठे, तो उस बीच में आपको नींद नहीं आई? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वो तो एक बार हुआ ना, कई बार तो किताब खोलते ही सो जाते हैं, ऐसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डे। तो वेरी गुड क्वेश्चन हो जाता है। सो नींद क्यों आ रही है जानना जरूरी है। क्या आप थक गए थे, क्या आप पहले डिमोटिवेटेड हो, यार ये पढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना। तो छोटी सी चीज होती है, जिस टेबल पे आप बैठ रहे हो, जहां आपको नींद आ रही है, पहले वहां से जो अपने डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम कर दो आप। जैसे फोन है उसको दूर रख दो, ये आपका कोई और चीज है, मतलब चाय वाय पीनी है, पानी पीना है, तो वो अपने पास रख लिया, पेन पेपर पास में रखा, पता लगा स्टार्ट करने के लिए पहले पढ़ने बैठे, फिर 2 मिनट बाद पेन ला रहे हो, फिर पेपर ला रहे हो, फिर कहते हो चाय भी बना लेते हैं, आधा घंटा ऐसे हो गया, एंड यू वेस्ट योर टाइम गेट्स वेस्टेड। तो अगर नींद आती है ना, उसका सिंपल सोल्यूशन है, तो ये अपने आप को समझाओ, ठीक है कोई बात नहीं, 45 मिनट्स आई विल फोकस ऑन दिस थिंग, उसके बाद मैं 15-20 मिनट अपना सो लूंगी, 1 घंटा भी सोना, 1 घंटा सो लूंगी। तो यू अलॉट द टाइम फॉर योर स्लीप ऑल्सो, बिकॉज योर डिस्ट्रैक्शन इज योर स्लीप। तो आप उसको टाइम को अलॉट कर दो, तो आपका माइंड बार बार बोलेगा मुझे नींद आ रही है, तो आप फिर उसको समझाओगे कि अरे मैंने टाइम अलॉट कर रखा है उसके लिए। तो दैट टाइम यू विल बी एबल टू फाइट दैट पर्टिकुलर वो आपका जो
पुश हो रहा है टुवर्ड्स योर स्लीप, उसको फाइट करना है आपको। कोई भी चीज वोंट बी पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। अगर ये कहोगे मेरे पढ़ने का मन ही नहीं करता, मेरा सुबह उठने का मन ही नहीं करता, फिर तो मैं कितना बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है। वो तो आपको इतना बेसिक लेवल ऑफ वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोज कोई टॉपिक तो बता सकते हैं, बट कैसे लिखते हैं ABCD वो नहीं बता सकते। लेकिन ये जो इशू है ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। कोई आप किताब लेकर बैठोगे और एकदम से आपको लगेगा यार फोकस नहीं आ पाता है, तो वही है, पहले आप डिस्ट्रैक्शंस क्लियर करो, फिर देन यू सेट टू स्टडी। एंड जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनके लिए टाइम अलॉट कर दो। मोबाइल देखना, ठीक है मैं यार शाम को 5 बजे देखूंगा, 6 बजे देखूंगा, या फिर इसके बाद देखूंगा, 2 बजे देख लूंगा अगर 12 बजे बैठ रहा हूँ। सपोज मुझे घर बात करनी है तो मैं ठीक है उनको मैसेज डाल देता हूँ, मैं फिर कॉल कर लूंगा तब। या और भी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस होते रहेंगे आपके, उनको टाइम अलॉट कर दो। दैट इज हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। तो देखना, ट्राई करके आज नींद आती नहीं है, आप एक पेपर पेन लेके रखना, जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको नोट करके आप टाइम अलॉट कर देना। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, दिस इज व्हाट टीचेस यू। अच्छा, आप में से कितने लोग योग करते हैं? ओके। और मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? ओके। तो आजकल तो आपको मेडिटेशन के लिए कहीं बाहर जाने का नहीं है, मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। इट इज अ गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। तो वो फोकस में थोड़ा हेल्प करेगा आपका, थोड़ा क्लैरिटी लाएगा चीजों को। गोल्स आप बड़े रखो। द प्रॉब्लम इज गोल छोटे रखोगे वो अचीव हो जाएंगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। गोल्स बड़े रखो, उस हिसाब से आप अपने प्लानिंग फिर उस हिसाब से रखो। और उनके पाथ जो होता है वो पार्ट्स में ही बनता है। जैसे आप ये कहोगे 1 साल के बाद मुझे ये करना है, तो वो नहीं क्लियर होगा। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि पर डे आपको क्या करना पड़ेगा। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? Good morning, sir. My name is Khushi Chauhan and I'm a student of BSc Nursing 5th semester. मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जब हम इस स्टडीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती है जैसे मेंटल ट्रॉमा या फिर कोई भी ग्रीफ कंडीशंस या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्टेबल थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो उस टाइम पे उस कंडीशन में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल करें और अपनी स्टडीज पे कैसे फोकस बनाएं, तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। वेरी ब्रेव क्वेश्चन। सब फेस करते हैं, हमने भी फेस करा है। उसमें ये रहता है, पहले तो ये देख लो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस किस लेवल का हो रहा है। देयर इज ऑलवेज मेडिकल हेल्प अवेलेबल विच वी शुड रेडिली एक्सेस इट। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि सपोज कोई एंजाइटी हो गई एकदम से कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली ये हो रहा है कि आपके कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉर्टिसोल्स हैं और भी होते हार्मोन्स होते हैं, वो ऐसे आपको हिंडर कर रहे हैं कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई पे। दैट इज व्हाट हैपेंस विथ वेरियस डिजीजेज ऑल्सो। सो इट इज अ कंडीशन। तो पहले तो यह है, यू शुड टेक सम काउंसलिंग कि भाई ये मेरे को स्ट्रेस है। इट हेल्प्स टू ओपन अप। इनिशियली यू कैन ओपन अप विद अ फ्रेंड ऑल्सो, मे बी शी और ही माइट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो पहले तो है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर हम ये मान ही लेंगे, मतलब उसको हम इग्नोर करते रहेंगे, तो मतलब फिर डिफिकल्ट होगा, उसको हमें एसेस करना पड़ेगा। तो आई वाज टेलिंग, तो जब 1-2 बार नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो आई फेस द सेम प्रॉब्लम। मैं पढ़ नहीं पा रहा था। फिर देन आई टोल्ड माय फादर, उन्होंने बोला यार दूध पियो, चिरवा खाओ, सही हो जाओ। तो फिर मैं कहा ये तो क्या बात कर। फिर व्हेन आई टेल माय मदर, so he said I think you should take some counseling help. So I talked to my brother cousin. उन्होंने फिर हमारे स्कूल के सीनियर को रेफर करा। ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने 2-3 काउंसलिंग सेशन करे, मुझे बेटर फील हुआ। मैंने कहा ये तो कॉमन चीज है, वाई इसको स्टिग्मेटाइज करते हैं लोग। एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो वही है कि जब ऐसा ट्रॉमा होता है, ब्रेक डाउन होता है या फिर कोई ग्रीफ होता है, विच इज अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। अभी तक तो हम नॉर्मल चीज बात कर रहे थे। इट हैपेंस विथ एवरीबडी। जो भी थोड़ा टफ बात करेगा, जिसके गोल्स बड़े रहेंगे, वो सबके साथ होगा। तो उसको आप फिर बेटर है यू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प इन दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड। बाकी फिर ये सारी चीजें आपके साथ चलती रहेंगी।
ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, आई एम श्रेषा फ्रॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एवरीबॉडी इज टेलिंग अबाउट सक्सेस बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट फेलियर। सर आपने जैसे बताया कि आपने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई करा, तब आपने क्लियर कर पाया। ऐसा भी हमारे इंडिया में है कि अगर 2000 मतलब वैकेंसीज आती है तो जो लोग अप्लाई करते हैं वो लगभग 2 लाख के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसमें से वो 2000 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी जो पीपल्स बच जाते हैं वो कैसे फेस करते हैं? जैसे आपने बताया कि आपने टाइम पे आपके फादर्स ने आपको सपोर्ट किया, बट कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होते हैं वही आपको टॉन्ट करते हैं और वही आपको मतलब कोप करेंगे, तो हाउ टू कोप अप फ्रॉम पीयर ग्रुप्स? ये देखो, मेरा तो आईआईटी में नहीं हुआ यार, फिर मैं पैक चल गया। मेरी तो रैंक मोबाइल नंबर के डिजिट से भी ज्यादा थी, पढ़ा ही नहीं मैं, ना मेरा मन था। तो वो ऐसा नहीं होता कि बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता कि फेलियर सब नहीं फेस करते हैं। फेलियर फेस करते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। तो इफ यू डोंट गेट इनटू सपोज एन आईआईटी, यू गो टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, you go to NIT, you don't go to a private engineering college, and why the hell do engineering? I'm doing nothing which is regards to engineering, then I will have better field। BCom करता तो मैं आज लगता है मैं ज़्यादा सफल रहता। तो वो हर किसी की जर्नी अलग रहती है। ऑब्वियसली द काइंड ऑफ हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जो है वो ऐसा है कि द पोस्ट विल ऑलवेज बी लिमिटेड, बट विथ हार्ड वर्क देयर विल ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ठीक है, एक बार स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को यही करना है, दिस इज व्हाट आई विल बी प्लानिंग, और उसके बाद मेरे पास प्लान बी नहीं है कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सोचो यार ये पढ़ता नहीं, मेरे पास प्लान बी, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। ये रहना चाहिए, ये मैं टाइम अलॉट कर रखा है। सपोज मैंने 3 साल 2 साल दे रखे हैं इस चीज को मैं करने के लिए, अगर 3 या 2 साल में मेरा नहीं हो रहा है, then I will have to go through the other thing. I will share your story. I won't disclose the name. One of my friends, he was junior to me and he had age in his side. 6 अटेम्प्ट हो गए थे अलाउड हैं, उसने 2 अटेम्प्ट दिए। 2 अटेम्प्ट के बाद उसका नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में उसका मेंस तक आया और मेरे ख्याल से 5-6 नंबर से रह गया था। एंड वो इतना पढ़ा नहीं था, पहली बार पढ़ा था। देन आई टोल्ड हिम यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। आई वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड। 4th अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस लिखने का मौका नहीं मिला। होता क्या है कि जैसे सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि अब वो एक ही पेपर रहता है, कट ऑफ बहुत वैसी रहती है, तो सबके पॉइंट्स की वजह से भी वो डिस्क्वालीफाई होता है। बट मेंस में क्योंकि आपको आंसर लिखना आता है तो एक लेवल सबका सेट हो जाता है। तो 5th अटेम्प्ट उसने दिया ही नहीं। Then I told him, what are you doing here? Why are you not giving your attempts? You have age 32 तक अलाउड है, आप अभी 26 साल के हो, 2 अटेम्प्ट तुम्हारे बचे हुए हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। He told कि I have decided I will do law. Then I tried to motivate him, but he had made up his mind he will do law. And now he is working well. He is married. His wife is also a very good lawyer in a very reputed firm. He himself is a good lawyer. He did a course in London. He is back now. उन्होंने अपना फर्म स्टैब्लिश कर लिया है। तो वुड यू रिगार्ड हिम एज अ फेलियर? बट ठीक है, वो हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है, तो ये चीज को अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। कई बार ऐसे ही लगा था कि यार, इनफैक्ट दे वर बैचमेट्स ऑफ मी जो अहमदाबाद से थे, एंड दे वर स्टडीइंग फॉर यूपीएससी सिंस 2012 itself, means when I was in the college they were studying. They didn't go for the exchange program because they thought that they have to clear UPSC. They didn't clear the UPSC. But now they are running successful coaching institute कोई चला रहा है, and they are earning good, maybe 100 times than what I earn. तो आप उनको फेलियर समझोगे? नहीं समझोगे आप फेलियर। आज की डेट में जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं यूपीएससी के, उसमें से किसी ने आईएएस क्लियर नहीं करा, और लेकिन उनके वहाँ गेट के बाहर लाइन लगी रहती है। ऐसा भी नहीं है 40-40 बैच चलते हैं फिर भी एडमिशन डिफिकल्ट है, तो उनको आप फेलियर नहीं समझोगे ना। तो सबका पाथ डिफरेंट हो सकता है, मे बी गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। तो वो एक मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, बट यू शुड बी एबल टू पिवट। पिवट का मतलब है व्हेन यू अंडरस्टैंड कि इस राह में नहीं मिल रहा हमें, तो अच्छा हम ये ट्राई करते हैं, एंड दैट गोल शुड नॉट बी ऑल्सो वेरी लोअर। You should try to get to a field which is compatible with your aptitude. Good afternoon, sir. My name is Rania Bahar and I'm a student of JM third year.
सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर बचपन में जो मेरा गोल था वो था डांसर बनना सर, पर कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से मैं इस लाइन में आई हूँ, नर्सिंग लाइन में, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। पर सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो अभी भी डांसिंग में ही है, तो मैं ढंग से फोकस नहीं कर पाती हूँ। और सर मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, मतलब क्रिकेट में, और सर आपने भी कहीं ना कहीं अपना पैशन छोड़ के आप इस लाइन में आए हो। तो सर ऐसी क्या टिप्स है मैं भी मतलब हर चीज छोड़ के अपने प्रोफेशन पे ध्यान दूं और सक्सेस पाऊं आपके जैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद आई विल टेक 2 more questions, देन आई हैव टू लीव। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सेट है। आप बैठो मैम। तो जैसे आप डांसिंग का आपका था, विच इज़ योर पैशन, जैसे आई वाज, तो यार मैंने ना बड़े जल्दी रियलाइज कर लिया था कि द लेवल एट विच द क्रिकेट वाज सपोज टू बी प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल, उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। दिस आई रियलाइज इन 2008 while I was in college when I started preparing for CAT। जो रिजल्ट्स थे उसके मल्टीपल रीजंस थे। फैमिली से स्पोर्ट्स के प्रति उतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि स्पोर्ट्स में कैसे होता है, बहुत टफ है। तब IPL भी नहीं होता था कि इतने 11 लोग आपके टीम खेलती है, उसमें कैसे सिलेक्शन होगा। रणजी में भी इतने प्लेयर्स को पे नहीं मिलता था, तो उस हिसाब से था नहीं। कोचिंग भी नहीं मिली उस हिसाब से। कोई मतलब बहुत फर्क पड़ता है टेक्निक से। किसी भी चीज़, कोई भी आप स्पोर्ट्स लोगे या कोई भी वो लोगे, टेक्निक ही मैटर करती है आपकी। तो वो भी नहीं मिला, तो वो रियलाइज करा मैंने ओवर अ पीरियड। तो फिर मैंने अपने स्टडीज़ में फिर चला गया। मेरे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि मेरे को घर को सपोर्ट करना था। वो मेरे को दिमाग में मुझे पता लग गया था कि अभी ये नहीं हो पाएगा बॉस, आप इसको थोड़ा, अदरवाइज यू विल बी लैगिंग बिहाइंड इन अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका डांसिंग पैशन है, डांसिंग को आप प्रोफेशन, इसका मतलब, हाँ दूसरा, अभी क्रिकेट मैंने खेलना छोड़ा नहीं। फिर अभी जब यहाँ मैंने ज्वाइन करा व्हेन आई वाज इन अल्मोड़ा, तो वहाँ हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई थी, वहाँ थोड़ा ज़्यादा खेलना स्टार्ट करा। टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है पहाड़ों में जब पोस्टिंग रहती है, तो वहाँ खेलना स्टार्ट करा। देन आई गॉट अ होल्ड ऑफ अ गुड कोच हियर, तो ही इज टीचिंग मी फ्यू। तो देन आई रियलाइज, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो अगर आपको डांस एज अ प्रोफेशन अभी कंटिन्यू करना है फ्यूचर में, एंड बाय द टाइम यू आर डूइंग इज, फर्स्ट इज यू नीड टू, आपके पास क्या बिल्कुल समय नहीं होता क्या? होता है ना? तो कहीं ना कहीं से तो आपको समय उसमें निकालना पड़ेगा। नहीं तो अपना, अगर उस पैशन को आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो अपनी स्लीप से आप कट ऑफ करो। 8 घंटे सोते हो आप, 7 घंटे सो, 1 घंटा 1.5 घंटा आप निकालो और अपने पैशन को फॉलो करते रहो। इट्स वेरी इजी फॉर यू यार। यू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, यू गो एंड ज्वाइन जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करो, कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। तो पैशन इज समथिंग विच कीप्स यू यंग ऑल्सो। उसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, चाहे कोई कुछ भी कह दे, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। अब यह है कि पैशन प्रोफेशन में बनता है या नहीं बनता है, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स टू कल्मिनेट। आपको पहले तो ढंग की, आपको टेक्निक जो भी रहता होगा, डांस टेक्निक रहता होगा, बीट्स पकड़ना है, वो सब आना चाहिए। दूसरा, आपको प्लेटफॉर्म ढंग का होना चाहिए। तीसरा, आपका एक्सपोजर भी उतना हो जाना चाहिए कि ठीक है, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म विद बिग, मतलब जो परफॉर्मर्स रहते हैं उनके साथ आप कैसे कर सकते हो। और डांसर्स की भी थोड़ा बहुत, आई ऑल्सो ट्राइड माई हैंड इन मीन्स कॉलेज में, वैसे जो सभी लोग करते हैं, तो कई लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। क्या आप उस लेवल पे डांस कर रहे हो कि आप वो प्रोफेशन बना सकते हो? अगर आप पहले तो वो असेस कर लो, तो देन यू डिसाइड कि उसे प्रोफेशनली मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ, कि इसको करके मैं पैशन के रूप में करना चाहती हूँ। तो वो एक डिसीजन वो आपको लेना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें जो आपको चाहिए, यू विल बी अर्निंग फ्रॉम दिस फील्ड ऑल्सो। आप जब अर्न करोगे तो यू कैन इन्वेस्ट इन योर पैशन विच यू शुड डू। हम सबको अपने पैशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा म्यूजिक सिस्टम एक ले लिया, जिससे भाई पाराइड शीशा लगा लिया कमरे में ताकि आपको अपने स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स विच यू विल बी डूइंग। तो वो आप पैशन में अपने इन्वेस्टमेंट करते रहो, एंड मे बी व्हेन द टाइम इज राइट, द प्लेटफॉर्म will come across, तो you can move forward in your with your next step। कहीं आपने करा, in fact I will tell you a story। My neighbor became Miss World
व्हेन आई वाज इन आगरा, लेकिन वो आज तक उन्होंने मॉडलिंग नहीं करी थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, तेरे से 1 साल सीनियर थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, पुणे में दोस्तों के साथ गए हुए थे, कहीं मॉल में कोई रैंप वॉक था वो किया। शी बिकेम एंड शी पार्टिसिपेटेड मिस इंडिया वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, मिस इंडिया वर्ल्ड बनी। तो वो बाय लक की चांस था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था। शी वॉज 26। नॉर्मली 18-19 ईयर्स की एज में ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं, तो वो रहता है। एंड लकीली फॉर यू डांस इज समथिंग जिसमें एज कोई बैरियर नहीं है। कीप ऑन फॉलोइंग योर पैशन एंड वेट फॉर द राइट टाइम। आप अपना इम्प्रूवमेंट्स करते रहो, ठीक है। बाकी डांसिंग में भी आपको देखना चाहिए कि अगर इफ़ यू कैन टीच, यू कैन हैव ऑनलाइन क्लासेस आज की डेट में। इफ़ यू अराइज फ्रॉम दैट लेवल और इतना सफिशिएंट आपके पास वो बन जाए, देन यू कैन गो एंड फॉलो दैट प्रोफेशन ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो वे टू मूव फॉरवर्ड। बट वो तभी हो पाएगा जब आपने उसके स्किल को आप ग्राइंड करते रहोगे, स्किल को आप मतलब अच्छा करते रहोगे, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. आई एम आदित्य फ्रॉम बीएससी नर्सिंग सेकेंड शिफ्ट। सर मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपने आईएएस फील्ड को ही क्यों चूज किया? अच्छा, वो क्या था यार, पुलिस में ना खेलने का टाइम नहीं मिलता था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बैठो भाई। एक्चुअली क्या रहता है, पुलिसिंग व्हेन आई वाज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, मेरे वो उस्ताद जो होते हैं वहाँ, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट, जाओ नहीं। आखिरी दिन भी यही बोलते रहे मुझे। लेकिन व्हाट आई रियलाइज वाज कि जो कैनवस होता है काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थोड़ा ज़्यादा होता है। पुलिसिंग में एक पर्टिकुलर फील्ड में आप रहते हैं, बट यहाँ हम जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं, स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं। तो इस वजह से आई पिक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पिक किया, आई गॉट सेलेक्टेड, देन आई रियलाइज कि ये जाना चाहिए। तो करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ी बेटर रहती है, विच इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन टू टेक एंड विच यू शुड ऑल्सो डू। जहाँ करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ा बेटर रहेगा, जहाँ आपको लगेगा कि यू विल बी बेटर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप वो करना चाहिए। कई ऐसे लोग थे जिनका रैंक टॉप 20-30 में था, उन्होंने पुलिस सर्विसेज भी ले रखी है, क्योंकि उनका जो स्किल सेट था वहाँ था, उनका इंटरेस्ट वहाँ था, उनका इंक्लिनेशन वहाँ था, और दे आर डूइंग गुड ऑल्सो। तो वो फिर उनका एक्सप्रेशन है, वहाँ उनको एक्सप्रेस करने को मिल रहा है, ठीक है। जो ये इट इज़ अ वेरी पर्सनल डिसीजन जो लोग लेते हैं। इनफैक्ट मैनी पीपल, कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉप 100 में रैंक पाते हैं, IRS ले लेते हैं, कई मतलब हर साल 1-2 होते हैं। तो उनको लगता है कि जो इजी मोबिलिटी है बड़े सिटीज़ में रहना, क्योंकि छोटे शहरों में शायद नहीं रहना चाहते होंगे, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को क्लैरिटी रहनी चाहिए कि वो क्या चाहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रॉब्लम सारी फसाद की जड़ ये रहती है कि हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए। इसी वजह से आप क्राइम्स होते हैं, इसी वजह से जितने भी आप देखोगे इकोनॉमिक जो करप्शन है वो भी इसी वजह से होता है। यू वांट टू अर्न मनी, यू शुड डू बिजनेस, नॉट बिकम अ सिविल सर्वेंट। इफ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, you go and do entrepreneurship, don't become a manager in some firm. You will never be able to earn as much as an entrepreneur. या entrepreneur, established entrepreneur. तो वो क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। मॉर्निंग सर, आई एम निखिल, आई एम बेसिक नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि सर ने अपने बारे में पूछा या अपने एडिक्शन। सर में एक क्वेश्चन है सर, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं हमारे, वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? अभी क्या हो रहा है कि यहाँ गल्फ में वॉर हो गया, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? माइक दे दो। वहां से लोग यहाँ आएंगे। नहीं, गल्फ नहीं है वो, यूक्रेन रशिया। हाँ, इधर हो गया। हाँ, इसमें जैसे आपने बोला सर, जैसे कि अब उन्होंने टूरिज्म पे ज़्यादा अपना वो किया है। नहीं, टूरिज्म में नहीं, वहाँ कई लोग काम करने जाते हैं हमारे। पहले तो वो वापस आएंगे, दूसरे जो रेमिटेंसेज है वो हमारा ज़्यादातर गल्फ से आता है, वो कम हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द फैमिलीज हियर। कुछ स्टेट्स ऐसे केरला है, वहाँ से ज़्यादा इमिग्रेशन रहता है, तो वहाँ से हमारा रहेगा। तीसरा, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाएगा,
स्टॉक लिमिटेड है जो हमें मिल रहा है, तो हमें अगर जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया तो प्राइस उसका बढ़ गया, तो आपको यहाँ से जो मैकडोनल्ड्स पे जाना है उसका पैसा बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ गया। तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले तो प्रैक्टिकली सब कुछ प्रैक्टिकल रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बी इट यूएस, रशिया, बी इट चाइना। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी इट इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, हम आइडियोलॉजी से स्टक नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो, इट हेल्प्स इन अस टू मैन्यूवर ऑल्सो। चाइना से हमारे इतने इश्यूज चल रहे हैं लेकिन हमने बिजनेस बंद नहीं करा। आज की डेट में भी टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में है चाइना इंडिया का, हो सकता है नंबर 1 हो, क्योंकि फिगर्स मुझे अभी मेरे पास है नहीं। जब मैं पढ़ रहा था बीच में नंबर 1 भी रहा था, पहले यूएस रहता था, उससे पहले रशिया रहता था। तो द थिंग इज दैट कि वी मे बी इंक्लाइन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इट इज नॉट गोइंग टू फीड मी। तो फीड में भी जो मेरी इकोनॉमिक्स है वो सही रहेगी, वो मेरी स्ट्रांग रहेगी, तब मेरी गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे कि वो चीज़ों को मतलब अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करा सके। दूसरी चीज़ रही, बैठ जाओ, ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे जैसे पैलेस्तीन और इसराइल का इशू हुआ, तो यहाँ हम टेक्निकली तो इसराइल से बहुत कनेक्टेड है, इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत कनेक्टेड है, बट पैलेस्तीन देखोगे आप, इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन। हमारी पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, तो हम ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते कि यार वहाँ जो भी हो रहा है होने दो। कहीं ना कहीं इमोशनली वी विल ऑल्सो फील कि दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन जहाँ ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है। एटलीस्ट अगर हो सकता है अलग रिलीजन को फील नहीं हो रहा, लेकिन जो रिलीजन बेस यहाँ है उसे तो फील हो रहा होगा। सपोज आप नेपाल में हिंदूज हैं, वहाँ कोई और कम्युनिटी आती है, अटैक करती है, हिंदूज पे अटैक होता है, तो यहाँ आपको फील होगा नहीं होगा? तो फिर आपको वो तो हो गई। दूसरी चीज़ सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ग्लोबलाइजेशन की एज में, तो ये सोचेंगे कि हमारा बाहर कहीं चल रहा है वो कभी हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आज नहीं कल तो वो ट्रिकल डाउन होगा ही होगा। इट मे बी इन अ वेरी माइन्यूट फॉर्म विच मे बिकम बिग और मे नॉट बिकम बिग इन द लेटर स्टेजेस। तो ऐसे सारा कनेक्ट करता है। दूसरा, हमारे इंडिया को अब तो वी आर वेरी वेल ऑफ, वी हैव बीन फंडिंग वेरियस गवर्नमेंट्स जो अंडर डेवलप रीजन्स हैं, उनको हम फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। बट कई बार हमें भी ऐसा सिचुएशन था जब हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, तब हमें मल्टीलेटरल एजेंसी से फंड्स मिलते थे। कई बार वो मल्टीलेटरल एजेंसी जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके जो फंड्स आते थे वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन के साथ आते थे जिसने हमारे डेवलपमेंट को कंस्ट्रक्ट भी कर दिया, इवन करने की कोशिश भी करी, लेकिन रोक भी दिया कहीं पे। तो ये भी एक चीज़ है, आपकी फंडिंग अगर आ रही है किसी मल्टीलेटरल एजेंसी से तो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, अगर हम किसी कंट्री को अगर फंड कर रहे हैं तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि कभी कभार हम किसी इशू पे जो स्टैंड ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, एटलीस्ट वो हमें सपोर्ट करें। अब बात लेकिन थोड़ी मैंने फैला दी, आपका था कि इंटरनली कैसे फ़र्क पड़ता है। तो इंटरनली इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि वी एज अ कंट्री आर डीलिंग विद डिफरेंट नेशंस, और जो हमारी पॉलिसी रहेगी उनके साथ वो हमारी ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा, वो हमारी इमिग्रेशन को इम्पैक्ट करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अस इंडिविजुअली, विच इज विल हैपन ड्यू टू ट्रिकल डाउन। सिंपल एग्जांपल था, गल्फ में वॉर हुआ, डीजल वहाँ से आपका क्रूड ऑयल महंगे हो गए तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। वो हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है, कोई कहेगा नहीं कर रहा तो बेवकूफ़ है। दैट इज गोइंग टू हैपन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ऑटो वाले पैसे बढ़ा देंगे, कह दो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो से जाओगे ऑटो बढ़ जाएंगे, बस के फेयर्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसलिए हमारे अब एआई रिसेंटली डेवलप ज़्यादा हो रहा है एआई, तो सर उसका हमारा एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके? तो वो तो एजुकेशन में ले लिया ना उन्होंने, आपका 11-12 की क्लासों में भी अब तो चैप्टर्स आने लग गए। तो जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई फील्ड आएगी, तो वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं, उसको इफ ही वांट्स टू आस्क ही कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन। तो जैसे एआई का तुमने बोला, एआई का पहली बात तो है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को जल्दी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा कि वो एआई को अडॉप्ट करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसकी वो स्किल सेट्स को अडॉप्ट करे। आज की डेट में जैसे आपने वीडियो आज शो करा, वीडियो एडिटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। मे बी एट अ टाइम ऐसा हो जाएगा कि जो इंजीनियर से ज़्यादा हमें एआई के बारे में जो
और एआई में भी आपको एआई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना, आपको ऑलरेडी जो हमारे सॉफ्टवेयर है उस पर कैसे काम कर रहे हैं वही अगर मिल जाए तो दैट इज गोइंग टू कट द केक फॉर यू। तो वो वाली चीज़ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड द पेस आई थिंक इज गुड इनफ। एकदम से एक्सपोजर भी ठीक नहीं है, अभी एआई भी नया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो कई डीप फेक वीडियोज़ भी बन रहे हैं, वैसे इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना है। साथ में साथ हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और हमारे एजुकेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करना ताकि उसे अडेप्ट कर सके। सेम थिंग हैपेंस विथ एनी न्यू इन्वेंशन दैट हैपेंस। बचपन से मतलब बचपन से कहने का मतलब है जब से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन रहे तब से एयरक्राफ्ट्स नहीं बने थे, लेकिन जब बन गए तो उसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, उसके कोर्सेज बने, नाउ इट इज़ अ कॉमन थिंग। आपको लगता है क्या नई चीज़ है? तो वैसे ही एआई के साथ भी वैसे ही होगा। एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग एंड इट विल ड्रास्टिकली ऑल्सो चेंज द जॉब, जो आपको जॉब टाइप ऑफ जॉब्स जो आपको बाहर अवेलेबल होंगी। और अभी अगर आप लोग के कोर्सेज में यहाँ क्योंकि नहीं होगा उतना, मेडिकल फील्ड्स हैं तो ऑनलाइन बहुत फ्री कोर्सेज हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हो और उसे करना भी चाहिए। थैंक यू सर। आप पर्टिकुलर प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? मैं हैंडल ही नहीं करता हूँ यार। वो तो पार्ट ऑफ जॉब है ना, हैंडल क्यों करना? प्रेशर जब होगा जब चीज को हैंडल नहीं करूंगा, तो प्रेशर आने नहीं देना ना। आप चीजों को ढंग से मैनेज करके चलो, प्रेशर नहीं आएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। अभी आपने हरिद्वार में स्टेडियम बनाया, हाँ, और जैसा कि आप क्रिकेट लवर हो तो आप अभी भी इनडायरेक्टली उस चीज को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो ऐसा कभी होगा कि इंडिया की टीम यहाँ पे खेलने आए कभी? यार लेकिन भाई मेरा अभी तो, हाँ नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी वहाँ क्रिकेट बनाने के चक्कर में क्रिकेट को फॉलो नहीं कर, अब घास कैसे लगती है सीख रहा हूँ, पिच कैसे बनती है, कितना टन का रोलर चाहिए ये सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि रोज जाके पानी कैसे बहना चाहिए ये सीख रहा हूँ। इंडिया टीम उसका एक साइड में थोड़ा छोटा है, उधर रोड है, उधर वो 55 मीटर है, हमें चाहिए था 60 मीटर। लेकिन फ्यूचर में वी कैन इनवाइट टीम टू प्रैक्टिस यहाँ खेलने के लिए, और हमारे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से हमने इनफैक्ट बीसीसीआई से मिस्टर अभय कुरुवेला जो इंडिया खेले हुए हैं उन्होंने विजिट करा है, आशीष भौमिक जो चीफ पिच क्यूरेटर हैं इंडिया के, उन्होंने विजिट करा है, दे हैव गिवन सम सजेशंस, हम उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पिचेस 3 अभी उनको बढ़ा के 2 और बढ़ा रहे हैं, एंड आई थिंक विद इन बाय द एंड ऑफ दिस मॉनसून सीजन वी विल बी स्टार्टिंग द ग्राउंड। तो अभी आपको आईआईटी में, जो आईआईटी रुड़की में गए हो आप लोग? अच्छा, वहाँ रात को लाइट देखते हो जो बनते हैं, उससे ज्यादा हमारा ल्यूमेंस रहेंगे इधर, तो वो मुझे लगता था बहुत है, बट इंटरनेशनल में जो हम बना रहे हैं उससे भी ट्रिपल चाहिए होता है। तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी, दूसरा हमने टाई अप कर रखा है कि उत्तराखंड क्रिकेट जो हमारी टीम है वो तो यहाँ प्रैक्टिस करे करे, डिफरेंट क्रिकेट एसोसिएशंस को भी हम इनवाइट करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू आवर कोचेस वी हैव बीन इन टच, उनको करेंगे ताकि बच्चों का एक्सपोजर बढ़े, द टाइप ऑफ गेम दैट इज हैपनिंग, जो स्किल सेट है, तो फिर वो आसान रहेगा हमारे यहाँ से भी बच्चों को निकलने के लिए। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग प्रोफेशनली, हरिद्वार में इतना टैलेंट है बट हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं है, तो उधम सिंह नगर में बेटर था टैलेंट, दे परफॉर्म वेल, देहरादून दे परफॉर्म वेल इन द क्रिकेट जो यहाँ चलता है, इसलिए मेजर जो लोग होते हैं वो भी वहीं से सेलेक्ट होकर आ जाते हैं। उसका मेन रीजन था एक्सपोजर की बात आ जाती है, देहरादून में मैचेस होते रहते हैं, वो उस लेवल पे खेलते हैं, तो वो एक चीज़ है। बट होपफुली वी विल बी एबल टू इनवाइट, इफ इंडिया का इंटरनेशनल मैच नहीं हो पाया लेकिन इंडियन टीम को हम इनवाइट करने की ट्राई करेंगे नियर फ्यूचर, जैसे हमारा ग्राउंड एक्टिव हो जाएगा, हम मैचेस, हम अपने आप को पहले उस लायक बना लेंगे कि एक इंटरनेशनल टीम यहाँ आ सके, तो वी विल बी एबल टू प्ले। इनफैक्ट इससे भी छोटा ग्राउंड था जो चंडीगढ़ का सेक्टर 16 ग्राउंड था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो मे बी अगर रहा एंड आवर गवर्नमेंट फील्स दैट वी नीड टू प्रमोट दिस स्टेडियम ऑफ हरिद्वार, तो मैचेस हो सकते हैं, विच इज़ नॉट अ बिग टास्क, वी हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज देयर। थोड़ा और बनाना होगा तो वी विल इन्वेस्ट इट, वी मे गेट सम स्पॉन्सर्स ऑल्सो, उसको हम कोशिश करेंगे। अब अभय कुरुविला हैज विजिटेड हियर, तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो हम ठीक कर रहे होंगे, क्योंकि नॉट हिम बीइंग अभय कुरुविला बट हिम बीइंग द चीफ सेलेक्टर ऑफ द ग्राउंड्स, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम किधर
एग्जामिनेशन के पेपर पता रहना चाहिए कि किससे हमें पास कराना है, तो जिससे पास कराना है उससे हमने फीडबैक ले लिया है। अब हम उन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू हैव गुड क्वालिटी मैचेस हियर व्हिच आई कैन अश्योर विल हैपन वेरी सून। हाँ, अब लेकिन सिर्फ 3 ही लेयर की बनती है। ये नई किताब आई है, उसने डाली है चीफ सेलेक्टर ने, तो ये सीखने के लिए हमने अपने पिच क्यूरेटर को रामनगर भेजा था। रामनगर में कोर्स था, तो उधर आशीष भौमिक जी आ रखे थे, तो अब वो चेंज हो गया मॉडल। हमने जो बताई तो उन्होंने कहा ये रिडंडेंट हो गया। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे उन्होंने एआई के बारे में पूछा, हमें भी अपने आप को वो करने की जरूरत है। पहले पिच 5 या 6 महीने में बनती, उन्होंने बताया 2 महीने में मैक्सिमम, अब 2.5 महीने में पिच बना सकते। थैंक यू। थैंक यू सो मच यार, आप लोग को काफ़ी देर वेट करना पड़ा, तो उसके लिए तो बहुत बहुत सॉरी। नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर कि मैं थोड़ा टाइमली आ सकें जब भी अगर कोई सेशन होता है। एंड इट वाज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू पीपल, क्योंकि आप लोगों ने जो सवाल पूछे वो काफ़ी रेलिवेंट थे। इनफैक्ट जो सिचुएशन आप में हो, आप फेस कर रहे हो इस समय, उससे रेलिवेंट थे कि यू ट्राइड टू गेट द बेस्ट ऑफ द दिस लेक्चर दिस टाइम विथ मी, कि कैसे मैं आपकी कुछ ऐसी चीज़ बता सकूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। एंड ये सारे चीज़ आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करा, कोई भी क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं था। विच आई वुड लाइक टू थैंक द MD here and the director here, because you might be inculcating the right pedagogy कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हो। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, क्योंकि पढ़ाई वाली फील्ड में इसलिए बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है, पढ़ना कैसे है पहले ये सीखो, कैसे फोकस होता है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन, फिर तो आप कोई भी किताब जब उस जोन में पहुंच जाओगे, आप किसी भी टॉपिक में मास्टरी कर सकते हो, जब आपका वो फोकस और वो स्ट्रेंथ आ जाएगा। एंड आप पैशन की बात होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योरसेल्फ इन द पैशन। जो भी आपका है उसको आप कभी मत छोड़ो, यू फाइंड आउट टाइम फॉर इट अपने हिसाब से, दैट वुड कीप यू सेन। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, दैट इज वाई वी लिव। अगर लाइफ बिल्कुल एक स्मूथ बिटुमेन रोड की तरह हो जाती तो फिर गड्ढे भरने वाले कहाँ से आते, तो सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मतलब चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आने ही आने हैं। कोई ये कहेगा मेरा कोई चैलेंज नहीं था, मैं बहुत अमीर पैदा हुआ था, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। देयर आर सो मेनी रिच पीपल डाइंग यंग। चैलेंजेस सबके पास में आने, आपके पास भी आएंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, बट उसको कैसे आप फेस करके बाहर निकलोगे, दैट वुड डिसाइड द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। और कई बार हम हो सकता है उस चैलेंज में हम अटक जाएं, तो उसमें पिवट भी हम कर सकते हैं। वी कैन चेंज द फील्ड, वी कैन चेंज आवर अप्रोच टुवर्ड्स द सिचुएशन। आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो सर, आप आज केयर कॉलेज में आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मैं धन्यवाद करूंगा केयर कॉलेज की पूरी टीम का, MD साहब का, डायरेक्टर मैम का और प्रेस क्लब का, जिन्होंने ये सिचुएशन, इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करी। 1-on-1 सेशन रहा, बच्चों को काफ़ी उनके जागरूकता वाले क्वेश्चंस थे और कई क्वेश्चन से मैं भी खुद जागरूक हुआ, चीज़ों को, अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ा के उनसे आंसर कर पाया। एंड मैं होपफुल हूँ कि इस लेक्चर के बाद या इस डिस्कशन के बाद यहाँ जो टैलेंट है वो और निखर के आएगा। और अगर कभी भी कॉलेज को, संस्था को लगता है कि मेरी ज़रूरत है, तो वी विल बी ऑलवेज देयर विद अ हेल्पिंग हैंड।